Good evening, everyone. So, guys, today we are going to discuss especially topic pipes and cistern. Time and work almost अपने last class में complete किया था. Yes, rest कुछ questions definitely discuss करेंगे. सभी ने last class attend किया था? Yes or no? आकांक्षा, पवन, मंजीत. Okay. So, which was the last question in your last class? I think yes. ये आपका last question था. Right? Answer for this question is 2 hours. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नाउ योर क्वेश्चन सेज three men A, B, C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started work together. After 2 days A left the work. Next 2 days C also left. Then in how much time the whole work will be completed? So एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए कि आपने लास्ट क्लास में जितना कवर किया है सब माइंड में है कि नहीं. तो जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ओनली. डू इट फास्ट. इनिशियल स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना था. 10, 12 and 15. Time period is given. So according to note number 1, LCM of all these data, it means 60. This figure is treated as a total work. Now work per day is what? It is 10 6 times, 12 5 times and 15 4 times. Work per day को represent कर रहा है. Then follow करना है केवल language को and get your answer. So guys, your answer. वंशिका, आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था? Sir, I have attended half of the class, sir. Because of the network issue, I have left the class, sir. बेसिक्स तो इट मींस क्लियर है ना, अगर हाफ क्लास भी अटेंड किया था. Yes, sir. Basics has been cleared, sir. मंजीत, Ashvi, Pawan, your answer for this question is, or any problem to solve this? Speedily comment करें. So Pawan got 7. Pawan, ये तो wrong answer है. देखिए, question says they started the work together. After 2 days, A left the work. It means A ने
ओनली इनिशियल 2 days वर्क किया है, 1 day का वर्क है 6 यूनिट, so obviously 2 days का वर्क हो जाएगा 12 यूनिट्स. Then for next 2 days C also left. It means C ने अब वर्क किया है 4 days. So 16 unit work done by C, 12 by A. So total 28 हो गया. 28 work done by A and B. So remaining is 32. And this work done by C only. So C का पर डे का वर्क है 5 यूनिट और कंप्लीट वर्क किया उसने 32. सो 32/5 विच मीन्स 6/2/5 days. सो इनकेस आपसे क्वेश्चन पूछता है सी ने कितने दिन वर्क किया, देन आंसर 6/2/3 days. इवन अगर आपसे कंप्लीट टाइम भी पूछा जाएगा तब भी आंसर सेम रहने वाला है, बिकॉज सी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू एंड पोजीशन वर्क करता रहा है. केवल ए ने लेफ्ट किया है, सी ने लेफ्ट किया है, बट सी वर्क होल टाइम. So your correct answer is 6/2/5 है ये, or you can say 6.4 days. Manjeet, clear? Yes, Pawan. Okay. So the next question, A and B can complete a work in 12 and 15 days respectively. They started the work alternatively. Alternatively, and for 1 day each, and A start the work first. In how much time? 60% of work will be completed. So timings given at 12 and 15. Take a LCM, which is 60. बट 60 इज टोटल वर्क. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 60% वर्क से मतलब है. सो 60% ऑफ दिस कंप्लीट वर्क विच मीन्स 36 यूनिट वर्क केवल कंप्लीट कराना है. वर्क पर डे आपका 5 and 4 है. ऑल्टरनेट मोड में इन फर्स्ट डे ए, इन नेक्स्ट डे बी. सो ए और बी का कॉम्बिनेशन विद इन 2 days, क्योंकि ऑल्टरनेट वर्क हो रहा है, विद इन 2 days आपको 9 यूनिट दे रहा है. सो 9 यूनिट करने में 2 days लग रहे हैं, सो ऑब्वियसली 36 यूनिट करने में 8 days. करेक्ट आंसर इज 8. इज इट क्लियर एवरीवन? ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. अब लैंग्वेज इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा केयरफुली डील करिएगा. The language says two workers A and B working together can complete a job in 5 days. But when working together, if A worked twice as efficiently as he actually did, and B worked 1/3 efficiently as he actually did, then the work would have been completed in 3 days. So in how many days A alone can complete the whole work? इजीली हो सकता है ये क्वेश्चन.
तो गाइस डिस्कस करें, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस। मंजीत। यस सर, डिस्कस करो इसको। तो देखिए, एलसीएम तो इजीली आपसे आ गया 5 and 3, सो योर एलसीएम इज व्हाट। एक मिनट, क्या डेटा यही दिया था ना? 5 days एंड इन दिस सिचुएशन 3 days, यस ठीक है। सो आपका एलसीएम आ गया 15। ठीक है। सो A+B, और बल्कि इसको और थोड़ा इजी बनाया भी नहीं, ऐसे डील करने में भी शायद आपको प्रॉब्लम हो। ये आपको गिवन था कि ये टाइम पीरियड था आपका 3 days, बट डील करने में ऐसे फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो इन केस अगर आपने ये कंप्लीट मैन पावर 3 times कर दिया, सो जिससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। यस आशवी, एब्सोल्युटली राइट। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 times ऑफ A+B में, और मैंने मैन पावर अगर 3 times कर दिया, सो डेफिनेटली टाइम 1 days हो जाएगा। यस और नो? अगर आप मैन पावर 3 टाइम कर रहे हैं तो टाइम विल बिकम 1/3, 1/3 ऑफ 3, इट मीन्स 1 day। ये डेटा क्लियर है? यस सर। हम्म। So, अब मेरे को इसकी नीड नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आता, अब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ गया। अब समझते हैं। एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यू इज 5। सो 5 1s एंड 1 5s। इट मीन्स A+B के थ्रू 1 यूनिट वर्क हो रहा है इन अ डे, और यहाँ पर 6A+B है जिनके थ्रू 5 यूनिट वर्क हो रहा है इन अ डे। इट मीन्स आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस फिगर में आपके पास 5A एक्स्ट्रा है, और 5A के थ्रू 1 and 5, इट मीन्स ऑब्वियसली 4 यूनिट वर्क इन अ डे हो रहा है। यस और नो? इस स्टेप तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ओके। सो इट मीन्स 5A अगर 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं, सो 5 यूनिट वर्क करने में उन्हें कितना लगा? 5A को, इट मीन्स 5 times ऑफ A को 5/4 days लग रहा है। बट आपसे तो सिर्फ A के लिए पूछा है, सो योर आंसर इज व्हाट? इट इज 25/4, विच मीन्स 6 whole 1/4 days, और यू कैन से 6.25 days। अगर B के लिए पूछते, सो फिर चूंकि A ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रहा है A का 1 यूनिट है, तो आप B का इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पर A+B का 1 यूनिट है, तो यहाँ पर अगर आपने A का पर डे का वर्क निकाला सब्ट्रैक्ट करके, वो भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा स्ट्रेटजी यूज करें अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। जो फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था M1D1 इज इक्वल टू M2D2, इसके थ्रू भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब M1 किसको डील करेंगे? M1 डील करेंगे A+B को, जैसा डेटा गिवन है, बिकॉज A+B कैन डू जॉब इन 5 days। सो D1 का वैल्यू 5 है। M2 क्या होगा? अब M2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। A वर्क ट्वाइस एज efficiently as he actually did, and B वर्क 1/3 efficiently, प्लस B/3। ये हो गया M2 का वैल्यू, और इस सिचुएशन पर D2 का वैल्यू 3 है। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं, सो आपको एफिशिएंसी का रिलेशन मिल जाएगा A और B का। सो 5A + 5B इज इक्वल टू 6A। ये B/3 था, 6A + B। सो विच मीन्स A इज इक्वल टू व्हाट? 4B। और आप कह सकते हैं A एंड B का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:1। टिल दिस स्टेप एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? Yes, sir. ओके। सो आप उसको ऐसे ही डील करेंगे कि A 4 यूनिट वर्क कर रहा है इन अ डे, और B 1 यूनिट वर्क कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन था कि 2 वर्कर्स A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। सो दोनों मिलकर विद इन अ डे, A+B मिलकर 5 यूनिट इन अ डे कर रहे हैं, और क्वेश्चन में गिवन है 5 days में कंप्लीट कर लेते हैं। इट मीन्स डेफिनेटली 25 यूनिट्स कंप्लीट वर्क होगा। अगर आपको टाइम पीरियड और वर्क पर डे दोनों पता है, सो इनका मल्टीप्लाई भी आपको टोटल वर्क देता है अकॉर्डिंग टू नोट नंबर 2। और यही सेम वर्क आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए से कराना है, जिसका वर्क पर डे है कितना? 4। सो ए के लिए आपका आंसर आ गया सीधा 25/4, विच मीन 6 होल 1/4। और बी के लिए भी इजिली आता है, बिकॉज बी कर रहा है 1 यूनिट पर डे,
It means it is 25 by 1. So for B it is 25 days. So मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी ज़्यादा इजी है अगर आपको ये फ्रैक्शन में डीलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो. Is it clear? Yes, sir. Manjeet, got it? Yes, sir. Okay. अब कुछ different questions हैं. Like the language says, there is a sufficient food for 400 soldiers for 31 days. After 28 days, 280 soldiers left the camp. So remaining 120 soldiers. So for how many days will the rest of food sufficient for rest of soldiers? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने इसको सही स्ट्रेटजी से सॉल्व किया विद इन वन लाइन सॉल्व हो सकता है. एंड इन दिस सिचुएशन आप टोटल फूड को कैसे ट्रीट करते हैं. टोटल फूड क्या होगा. इट इज 400 इंटू 31. अगर मैं कंप्लीट डील करूँ 400 सोल्जर्स के लिए एक्चुअली सफिशिएंट फूड फॉर 31 डेज था. सो इन दोनों डेटा का मल्टीप्लाई आपको टोटल फूड दे देता है. ओके, मंजीत एंड पवन गॉट 10. तो मंजीत कैसे सॉल्व किया. टोटल फूड 400 इंटू 31 मतलब 12,400 होगा. ओके. और 28 डेज तक सारे के सारे 400 सोल्जर्स यूज करेंगे मतलब हो जाएगा वो 11200. हम्म. ठीक है. फिर बाद में 28 डेज के बाद में 3 डेज के बाद में जो रह रहे हैं वो है 120 सोल्जर्स बच रहे हैं. ओके. उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा जो भी रिमेनिंग है. यस, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही है. बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है. अब इसको और भी करेक्ट स्ट्रेटजी से सॉल्व करें तो मैंने कहा था विद इन लाइन हो जाएगा. अभी इस टोटल फूड को आप अवॉइड करिए. एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है यस आशवी M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन में गिवन था आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप. इट मींस 28 डेज तक तो 400 सोल्जर्स ने ऑब्वियसली अपना फूड लिया है. तो रिमेनिंग फूड कितना बचा है. इस टोटल से मेरे को अब कोई मतलब नहीं है. मेरे पास रिमेनिंग फूड से मतलब होना चाहिए. और रिमेनिंग फूड आपका है कितना. और 400 सोल्जर्स 3 डेज का फूड है. यस और नो. ये क्लियर है ना. सो फॉर 400 सोल्जर्स 3 डेज और अभी आपके पास 120 सोल्जर्स रिमेनिंग है. सो फॉर हाउ मेनी डेज. इजीली आपका आंसर 10 आ जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन. यस, इतना सा सोल्यूशन है इसका. इज इट क्लियर. Now read the language of this next question. Again, interesting question है. वो 40 men can complete a work in 30 days. So it means total work आपका हो गया 40 into 30, which means 1200 unit. They started the work together. After every 10 days, 5 men left the work. In how much time work will be completed? So
ऐसी कंडीशन पर जैसा गिवन है वैसा ही स्टार्ट करना है। दे स्टार्टेड द वर्क, इट मीन्स ऑल 40 मैन स्टार्टेड द वर्क। इनिशियल 10 डेज तक वर्क किया, इट मीन्स 400 यूनिट्स तो कवर हो गया। फॉर नेक्स्ट 10 डेज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज 5 men लेफ्ट, इट मीन्स अभी ओनली 35 men इन्वॉल्व है। तो कितना वर्क हुआ इन नेक्स्ट 10 डेज? 350 यूनिट। फॉर नेक्स्ट 10 डेज अभी 5 और लेफ्ट कर गए, इट मीन्स 30 रह गए। सो टोटल यूनिट्स हो गई आपकी 300। और ये भी ध्यान देना है कि मैक्सिमम वर्क है कितना। सो अब तक आप देखिए 4 + 3 + 3 इट मीन्स 1050 कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? 150। और डेफिनेटली 25 वर्कर्स होंगे, तो डेज कितने होंगे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीडली आंसर करिए। टेन प्लस 10 + 10 + 6 it means total number of days are 36. Is it clear? तो सेम स्ट्रेटजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडली सॉल्व करिए। सो 60 men can complete a work in 40 days, it means total work आपका हो गया 2400 यूनिट्स। और बस लैंग्वेज को फॉलो करिए एंड गेट योर आंसर। ओके, सो 47.5 मंजीत के अकॉर्डिंग है। रेस्ट स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? ओके, यस, एवरीवन गॉट सेम। Very good. So the correct answer is 47.5. Anyone having any problem to solve this? Pawan? Okay. अब थोड़ा सा अपन पाइप्स के ऊपर मूव करें। यस, देखिए मैंने क्या कहा था, पाइप्स एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कंप्लीट स्ट्रेटजी सेम है। हाँ, एक एडिशनल वर्क आएगा, वो क्या आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो एज इट इज सेम है। क्वेश्चन का लैंग्वेज कहता है पाइप ए and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. If both pipes are open together in empty tank, how much time are required to fill the tank? So timing for pipe A is 10 hours, timing for B is 15 hours. Timing given है, so LCM लिया which is 30, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ये टोटल वर्क होगा। पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन में ये फुल कैपेसिटी होता है। एक्चुअली ये होता नहीं है, बस इसको ट्रीट किया जाता है एज ए फुल कैपेसिटी। सो वर्क पर आर, आर क्यों? क्योंकि अब आवर्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर डेज के रिस्पेक्ट में बात होता तो अपन डेज के रिस्पेक्ट में बात करते। सो 10 का 3 टाइम्स, 15 का 2 टाइम्स, दोनों मिलकर फिल करेंगे तो विद इन 1 आवर 5 यूनिट फिल हो जाएगा, और आपको फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 30 यूनिट फिल करना है। यस, करेक्ट आंसर इज 6 आवर्स। सो स्ट्रेटजी एज इट इज सेम है। ये तो क्लियर हो रहा है।
Got it, everyone? Yes, sir. हाँ, अब मैंने जो कहा था कि एक डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस क्या आता है, जैसे अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको गिवन है A can fill a tank in 6 hours and B in 9 hours, but C can empty it in 12 hours. So obviously दो तो काम बना रहे हैं और तीसरा काम बिगाड़ रहा है, तो इसका नेचर जैसा है वैसे ही आपको ट्रीट करना है. So your LCM is 36, which is full capacity. Work per hour is 6, 9 fours are 12 threes are, so 4 and 3. अभी जब ऑल वर्क कर रहे हैं टुगेदर, इट मीन्स आपका जो सिचुएशन आया विच इज A प्लस B माइनस C. वाई माइनस C? बिकॉज C तो एम्प्टी कर रहा है ना. सो इस पोजीशन पर 6 प्लस 4 वर्क पर आवर के रिस्पेक्ट में 10 यूनिट फिल हुआ, बट आउट ऑफ 10 C ने 3 एम्प्टी किया. सो विद इन 1 आवर ओनली 7 यूनिट फिल हुआ और आपको फिल करना है 36. सो योर आंसर इज 36/7. The correct answer is 5 whole 1/7 hours. Is it clear? तो बस इन क्वेश्चंस में यही ध्यान देना है कि कौन सा पाइप भर रहा है और कौन सा पाइप खाली कर रहा है, बस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली होगा. डू इट केयरफुली as it is same question है. A and B can fill a tank in 12 and 15 hours and C can empty it in 20 hours. So Ashvi got 10 hours. So your timing is 12, 15 and for C it is 20. Means your LCM is 60. 12 fives are, 15 fours are and 20 threes are. ऑल के सिचुएशन पे 5 प्लस 4 विच मीन्स 9 यूनिट फिल हुआ, उसमें से 3 एम्प्टी हो गया, 6 यूनिट फिल हुआ एंड 60 करना है. यस, करेक्ट आंसर इज 10 आवर्स. नाउ अभी लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा. ए बी सी का टाइमिंग गिवन है, बट आपको बोला ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 8 आवर्स पाइप बी टर्न ऑफ, देन हाउ मच टाइम required to fill the total tank? Okay, Ashvi got 18. Manjeet Pawan. Any problem? Yes, 8 plus 10. ठीक है. देखिए, all pipes are open together, but after 8 hours, pipe B turn off. It means for initial 8 hours तो all work कर रहे हैं ना, और all की पोजीशन पर A और B फिल करते हैं, C एम्प्टी करता है, तो 4 plus 3 7 यूनिट फिल हुआ. आउट ऑफ 7 2 एम्प्टी हो गया. इट मीन्स ओनली 5 यूनिट फिल हो रहा है.
8 आवर्स तक ये वर्क हुआ है, इट मीन्स 40 यूनिट हो गया, आउट ऑफ 60 40 हो गया, रिमेनिंग बचा 20। और अब उसने बोला बी टर्न ऑफ हो गया, सो अब बी का रोल यहाँ से फिनिश हो गया। इस सिचुएशन पर 4 यूनिट फिल हो रहा है, आउट ऑफ 4 2 एम्प्टी हो जाता है, इट मीन्स ए माइनस सी की पोजीशन पर ओनली 2 यूनिट्स फिल हो रहा है और फिल करना है 20 यूनिट्स। सो 10 एडिशनल आवर्स रिक्वायर्ड है, और 8 आवर्स पहले भी लगे क्योंकि आपको टोटल टैंक के लिए चाहिए आंसर। सो योर करेक्ट आंसर इज 18 आवर्स फॉर फुल टैंक, और अगर रिमेनिंग पूछेगा देन आंसर इज ओनली 10 आवर्स। क्लियर एवरीवन? Sir, can't we multiply 8 hours into 3 for B and subtract it from 60? And then the remaining is E minus C hours. That is 2 hours to complete 36 full capacity and make it 18 hours. देखिए प्रोसीजर के क्या भी फॉलो करें आप इंडिविजुअल में ब्रेक करके करें या सेपरेट करके करें, हर केस में आंसर आपको सेम मिलने वाला है, बट स्ट्रैटेजी करेक्ट होना चाहिए बस। Okay, sir. अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फॉर दिस क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, इनिशियली ए एंड बी आर ओपन, आफ्टर 7 मिनट सी इज ऑल्सो ओपन, सो 7 मिनट के बाद से फिर सबको कंसीडर करेंगे, बट फॉर इनिशियल 7 मिनट केवल ए और बी इन्वॉल्व होंगे। डू इट फास्ट। Yes guys, answers. That is 6, 45 and 30. LCM is 180. 36 5s are 45 4s are 36 are. फॉर इनिशियल 7 मिनट ए और बी इन्वॉल्व है, सो 9 यूनिट पर मिनट हो रहा है, ये वर्क पर मिनट के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है क्योंकि यूनिट्स आपको मिनट गिवन है। सो 9 7 जा 63 यूनिट्स फिल हो गया, 63 हो गया, रिमेनिंग 117, और इसे फिल करने के लिए सी को भी ओपन किया। सो नाउ योर सिचुएशन इज ए प्लस बी माइनस सी। इन दिस पोजिशन 9 यूनिट फिल हुआ, 6 एम्प्टी हुआ, इट मीन्स 3 यूनिट फिल हुआ और 3 के रेट से 117 करना है। सो इट मीन्स 39 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड इनिशियल 7 मिनट लगे हैं, उसको भी काउंट करेंगे। सो फॉर टोटल टैंक आपका टाइमिंग आया 46 मिनट। यस पवन, एब्सोल्युटली राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? Now try to solve this one.
Vamsika, any problem to solve this? No, sir, I'm trying. I'm doing good. मंजीत, लास्ट क्लास का कुछ प्रैक्टिस किया था? एक बार ये क्वेश्चन रीड करिए। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन विद सेम डेटा ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। 24 डेज में, 32 डेज में करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट, सो द कंप्लीट वर्क finished in 18 days. And for this question, as it is data भी सेम है, आंसर भी सेम ही आना है, बट इम्पोर्टेंट था कि आपके पास माइंड में लास्ट क्लास का कंप्लीट डेटा है कि नहीं है। देखिएगा, यस आशवी करेक्ट है। 8 मिनट। ए एंड बी का टाइमिंग गिवन है आपको 24 and 32। So your LCM is 96. This is your full capacity. Work per hour is 24, 4s are 32, 3s are। ये आ गया आपका वर्क पर मिनट। Now according to question, उसने बोला both pipes are open together. After how much time B should be closed so the total tank can be filled in 18 minutes. So ये complete tank आपको 18 minutes में fill करना है according to given condition। Start किया A और B दोनों ने, then B को close करना है, so remaining A fill करेगा। So A complete 18 minutes involved रहा। 18 minutes में 72 unit done by A, 72 done by A, so remaining 24 is the responsibility of B. So 3 8s are 24, it means time taken by B is 8 minutes. तो आपसे पूछा कितनी देर बाद B को बंद करेंगे, ऑब्वियसली 8 मिनट्स बाद। नाउ क्लियर? स्पीडली सॉल्व करिए इसको। Anyone got the answer?
ओनली पवन गॉट 6.88। चलिए डिस्कस करते हैं। आश्वी 5.1 मीन्स वेराइटीज स्टार्ट हो गई। सो 3 डेटा है आपके पास। सो योर एलसीएम इज व्हाट, इट इज 54। ये हो गया फुल कैपेसिटी। 9 6 18 3 एंड 27 2 ये आ गया आपका वर्क पर आवर। अब लैंग्वेज को फॉलो करना है। उसने क्या बोला, ऑल पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली। ऑल मीन्स ऑल ABC आफ्टर 4 आवर्स। 4 आवर्स तक तो ऑल ने वर्क किया, 4 आवर्स सी को क्लोज कर दिया गया। इट मीन्स अभी कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ A प्लस B इन्वॉल्व है। और आपको बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड। ऑल के केस में आपका पर आवर का सिचुएशन था 6 + 3, इट मीन्स 9 यूनिट फिल हुआ। 2 एम्प्टी हुआ, इट मीन्स 7 फिल हुआ। 9 7 4 28। सो इट मीन्स 28 यूनिट्स हो गया। अभी कितना बच रहा है आपको, 26 यूनिट्स बच रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक तो क्लियर है सभी को? ओके। हाँ, अब ये कौन फिल करेगा, ऑब्वियसली A प्लस बी फिल करेंगे। सो A प्लस बी 6 + 3 9 यूनिट फिल कर रहे हैं, और करना कितना है, 27। सो इट इज 27/9, सॉरी 26/9। So it means it is 2 whole 8/9 hours. Anyone having any problem? अब ये रिमेनिंग टैंक के लिए यही आंसर है। और अगेन आपसे टोटल पूछा जाता तो टोटल के केस में आपको ये 4 प्लस करना पड़ता। तो टोटल के केस में आपका आंसर है 4 + 2, इट मीन्स 6 8/9, and for remaining it is 2 8/9. So again अब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो इजी है, केवल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। So according to question, language says two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, so obviously पहले 1/3 full करना पड़ेगा। Situation आपकी ऐसी है कि 60 is your full capacity, work per hour is 3 and 2, 1/3 fill का मतलब obviously 20 units fill करना है। when the tank 1/3 full, so 1/3 full के केस में आपको फिर लीक डेवलप करवाना है। इसने बोला कि 1/7 ऑफ वाटर सप्लाई बाय द बोथ पाइप्स आर लीक्ड आउट। सो पहले 1/3 जब फुल करेंगे, A प्लस B विद इन 1 आवर 5 यूनिट फिल कर रहे हैं। 20 किया, 1/3 किया, इट मीन्स 20 किया। सो 5 4 20 विच मीन्स 4 आवर्स तो लग गए। अभी लीक डेवलप हो गया जिसके थ्रू 1/7 वाटर सप्लाई दोनों से कम हो गया। सो 1/7 अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली बचा कितना, अभी 6/7 बचा। ये पॉइंट तो क्लियर हो रहा है ना। लीक डेवलप हुआ जिसकी वजह से 1/7 वाटर सप्लाई दोनों से लीक हो रहा है। सो व्हाट इज द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। तो अभी इनिशियली अगर 5 यूनिट फिल कर पा रहे थे, तो अब चूंकि 1/7 लीक हो गया, विच मीन 6/7 ओनली बचा। और देखिए रिमेनिंग टैंक अभी था कितना, 40 यूनिट्स अभी भी रिमेनिंग था। तो इस रेट से इट मीन्स 30/7 के रेट से आपको करना है 40। सो इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 30/7, सो ऑब्वियसली 37 ऊपर जाएगा, विच मीन्स 28/3। एंड 28/3 इट मीन्स 9 होल 1/3 आवर्स एक्स्ट्रा लगे। टोटल के लिए आपको 4 ऑलरेडी जो पहले लग चुका है ये भी काउंट करना है। सो योर करेक्ट आंसर इज 13 होल 3 1/3 आवर्स। और आपको आंसर ऐसा भी मिल सकता है 13 आवर्स और 20 मिनट्स। I think clear everyone?
Yes, Manjeet. Okay. तो क्वेश्चन ऑल्टरनेट के ऊपर बेस्ड है। कैसे डील करते हैं आपको पता है, आज की क्लास में ही डिस्कस किया था। डू इट फास्ट। यस, आकांक्षा, पवन, मंजीत, आश्वी, वंशिका, स्पीडली आंसर करिए। पवन गॉट 7 मिनट। बेटा पवन, ये आप राउंड ऑफ करके आंसर दे रहे हैं या एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं? नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। देखिए आश्वी, ध्यान दीजिएगा। फॉर ए इट इज 6, फॉर बी 7 मिनट, मीन्स फुल कैपेसिटी इज 42 and work per minute is 7 and 6. So initial 1 minute A, then 1 minute for B. So in each 2 minute through A and B in alternate position 13 यूनिट फिल हो रहा है। अब अगर ये डेटा इसके मल्टीपल में है तब तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज अभी इसके क्लोज पहुंचना है। सो नेक्स्ट 2 मिनट अगेन ए और बी 13 यूनिट फिल करेंगे, नेक्स्ट 2 मिनट में अगेन 13 यूनिट फिल हो गया। इट मीन्स 39 यूनिट्स इन इनिशियल 6 मिनट्स में फिल हो गया और रिमेनिंग बचा 3। और किसका टर्न आ गया? अभी टर्न किसका है, ए का कि बी का? ए। यस, ए का है। सो 3/7 मिनट्स और लगेंगे क्योंकि ये पर मिनट 7 करना सिर्फ 3 है और 6 मिनट पहले के। सो योर करेक्ट आंसर इज 6 होल 3/7 मिनट। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्लियर एवरीवन? Ashwi got it? यस, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो आप। देखते हैं विद इन 30 सेकेंड कितने लोगों का आंसर आता है। रेस्ट स्टूडेंट्स, योर आंसर्स। तब तो सिर्फ मंजीत का आया है, इट इज 4.5।
अब आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन एज अ टेस्ट के फॉर्म में होगा, अपन कॉन्सेप्ट सारे कवर कर चुके हैं। आर दे फीलिंग यस बेटा? Okay. आश्वी का आंसर मंजीत से डिफरेंट है। अच्छा, मंजीत ने अभी करेक्ट कर लिया। यस, द करेक्ट आंसर इज 3/4। ना सिंपल क्वेश्चन था, देखिए जिसको भी प्रॉब्लम आया केयरफुली डील करिएगा। हाफ टैंक फिल हो गया, कंप्लीट फिल करने के लिए 6 आवर्स लगते हैं। इट मीन्स 3 आवर्स तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं थ्रू वन टैप। रिमेनिंग हाफ फिल करने के लिए ऑब्वियसली 3 आवर्स की नीड और थी, बट कब? अगर वन टैप यहाँ पर भी वर्क करता है। बट उसने बोला 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। अब यहाँ पर एक्चुअली 4 टैप्स वर्क कर रहे हैं। मैं लास्ट सिचुएशन के रिस्पेक्ट में देखूं तो वर्क फोर्स आपका 4 टाइम्स हो गया, तो ऑब्वियसली ये टाइम आपका 1/4 हो जाएगा। इट मीन्स 3/4 एडिशनल आवर्स रिक्वायर्ड है, और इनिशियल 3 आवर्स ऑलरेडी लग चुके हैं। सो इट इज 3/4 आवर्स, और इन डिटेल आप कह सकते हैं 3 आवर्स 45 मिनट्स। आशवी, आंसर आपका ठीक है, बट इससे पॉइंट्स में शो नहीं करते। या तो आप ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में दीजिए इन टर्म्स ऑफ आवर्स 3/4, अदरवाइज इन आवर्स एंड मिनट्स, क्योंकि पॉइंट्स का जो डेटा है ये 100 के रिस्पेक्ट में चलता है, बट यहाँ पर 60 के रिस्पेक्ट में चलेगा। यूनिट्स में 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इजीली हो जाएगा। चेक करिए, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 मिनट। LCM is 300, मीन्स फुल कैपेसिटी आप एज 300 ट्रीट करेंगे। 65 जा 75 4 जा 56 जा, वर्क पर मिनट भी इजीली आता है। Has any problem to solve? Okay, Ash, you got same 100 minutes. Good. Rest students. Pavan, language कहता है A can fill a tank in 60, B in 75, C का टाइम रिक्वायर्ड है, और A फिल करता है, B फिल करता है, C एम्प्टी करता है। ऑल की सिचुएशन पे आपका टाइमिंग गिवन है 50। So 3 data given, LCM of all is 300. This is full capacity. 65 जा 75 4 जा 56 जा। डेटा कंपेयर करिए। थ्रू A and B 9 यूनिट फेल हो रहा है, एंड ऑल 6 यूनिट हो रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली C 3 यूनिट्स एम्प्टी कर रहा है। वर्क पर मिनट है ये। So within 1 minute 3 units, so in how many minutes? 300 units. Obviously your answer is 100 minutes. Pavan. Again, this question is new test. Simple question, huh? Just like a practice question. A tap can fill a tank in 15 hours, but due to leak in bottom, it is filled in 20 hours.
tank is full, how much time are required by the leak to 1/4 the tank? Yes, guys, your answers. Any problem to solve this? Okay, Pawan got 15. Akansha 15. Yes. Ashwi, Manjeet, Vamshika. "15 hours" is the wrong answer. Why? A tap can fill a tank in 15 hours. Suppose B is the leak. इसका time required है. And A minus B की position पर it is 20. ये तो डेटा क्लियर है सभी को? Yes or no? So your total timing is, sorry, total capacity is 60. 15 fours are 23s are. So only A 4 units fill कर रहा है. With the help of leak, it means B ये 3 units fill कर पा रहा है. It means obviously leak ये 1 unit empty करता है within 1 hour. Yes or no? Till this step everything is fine. अब प्रॉब्लम लास्ट में आया जहां पर आप लोगों ने केयरफुली रीड नहीं किया क्वेश्चन को. एक्चुअली उसने बोला है टैंक कंप्लीट फिल है. कंप्लीट फिल है इट मीन्स ऑब्वियसली इसके अंदर 60 लीटर वाटर है और इस फिल टैंक को 1/4 करना है. इट मीन्स इसमें रिमेनिंग होना चाहिए 15 लीटर. सो फुल टैंक को 15 लीटर तक पहुंचाने में 45 लीटर एम्प्टी करना है. एक फुल टैंक 1/4 करने का मीनिंग है 3/4 खाली करना है. तो आपको वर्क करना था 45 लीटर पर थ्रू दिस लीक. सो योर करेक्ट आंसर इज 45 आवर्स. आप लोगों ने सीधा 1/4 पकड़ा और 15 आंसर कैलकुलेट कर दिया. ये मिस्टेक हो गया. एक्चुअली टैंक ऑलरेडी फिल था और इसे लीक के थ्रू 1/4 कराना था. इट मीन्स एक्चुअली 3/4 इसमें एम्प्टी करना था. सो कंसेप्ट सारे वही रहने वाले हैं बट आप लैंग्वेज को अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा. आई थिंक अभी सबको क्लियर है, स्पेशली दोज हु गॉट 15.
Clear everyone? Yeah? Okay. Yes. Again, this question is in your test. So do it carefully. Language important है. Concept तो सारे वही है. Language decode कर लिया, so easily result आता है. A, fill in 3 hours. B, fill in 4 hours. C, can empty it in 1 hour. Fill, or empty. So your full capacity is 12. 3 4s are, 4 3s are, and 1 से 12 हो गया. ये आया आपका वर्क पर आवर. अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो टाइमिंग गिवन है आपको. इसने बोला ये वाला पाइप एट 3 PM स्टार्ट हुआ, दिस वन एट 4 PM, and this one is 5 PM. At what time tank will be emptied? Speedily try करिए. Uh, 20 minutes. बेटा टाइमिंग चाहिए इन PM. PM और AM जो भी आपका आ रहा है. नो बेटा, 520 is the wrong answer. It means आप लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाई ठीक से. यस, पवन, मंजीत, आश्वी. Okay, Ashwi got 530. Manjeet, any problem to solve this? इतना टाइम तो सफिशिएंट था, कोई दिक्कत थी नहीं. Yes, Pawan got the absolute right answer. Correct answer is definitely, it is 712. This is your correct answer. जिन्हें नहीं आया वो केयरफुली समझिएगा, स्पेशली आश्वी. देखिएगा, टाइमिंग आपको गिवन था 3 4 and 5. सो ऑनवर्ड्स 5 PM, तो ये सारे पाइप वर्किंग मोड में है. किसी को बंद नहीं किया, सबको स्टार्ट किया है. 3 PM 4 PM 5 PM. सो फ्रॉम 5 PM, और जब तक ये पोजीशन जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तब तक ये सारे के सारे वर्किंग में है. सो आपको सबसे पहले इस फाइनल टाइमिंग पर फोकस करना है 5 PM पर, कि 5 PM तक एक्चुअली कितना कितना वर्क हुआ. सो 3 PM पर स्टार्ट करने का मीनिंग है अप टू 5 PM तक, विद इन 2 hours 8 units filled by A.
4 PM पर B स्टार्ट हुआ, 4 to 5, इट मीन्स विद इन 1 hours 3 यूनिट्स फिल बाय B, और ये तो 5 PM पे ही स्टार्ट हुआ है C, तो इसको अभी काउंट नहीं करेंगे। अप टू 5 PM तक 11 यूनिट्स फिल हो गई, 11 यूनिट्स फिल अप टू 5 PM। ये क्लियर है सबको, यस और नो? वंशिका, आश्वी, ओके। सो अब जैसे ही 5 PM हो गया तो सिचुएशन आ गया A प्लस B माइनस C का, which means 4 plus 3 7 minus 12, which means -5। ये -5 क्या शो कर रहा है कि इस पोजीशन से टैंक सिर्फ खाली होना है, और खाली कितना कराना है? ऑब्वियसली जितना फिल किया है 11, यस और नो? भाई अगर इसको मैं टैंक को शो करता हूं तो अप टू 5 PM तक सपोज इतना टैंक फिल हो गया था, और ये 11 यूनिट के इक्वल है। अब जैसे ही 5 PM पर ये पोजीशन आ गया तो यहीं से तो टैंक खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स 11 यूनिट आपको एम्प्टी करनी है। सो 11/5 विच मीन्स 2 होल 1/5 hours, और इन डिटेल इट इज 2 hours 12 minute after 5 PM। So after 5 PM 2 hours 12 minute, it means your correct answer is 7/12। Is it clear everyone? ओके, सो अगर अब कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ, एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ में, केवल डेटा चेंज किया है। सो डू इट केयरफुली। Yes guys, your answers, as it is same strategy use होना था to solve this question. पावर मीटर, आई थिंक पिछले क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर राइट था, तो अभी गलत कैसे हो सकता है? Yes, correct answer is 240, absolutely right. Discussion required for this question? Okay, Pawan, देखिए। So two pipes like A and B,
can fill a tank in 15 and 12 hours respectively. C can empty it in 4 hours. Your LCM is 60. 15 4s are 12 5s are and 4 से 15 मिला. Timing given है at 8 a.m. 8 a.m. at 9 a.m. and 11 a.m. I think आपने ये मिस कर दिया होगा शायद 2 hours का इंटरवल. जो भी हुआ देखते हैं अभी. सो अपने को फोकस करना था at 11 a.m. क्योंकि ऑनवर्ड्स 11 a.m. सभी वर्किंग मोड में है. सो 8 to 11 इट मीन्स विद इन 3 hours A ने 12 यूनिट्स फिल किया. 9 to 11 इट मीन्स इन 2 hours 10 यूनिट्स फिल हुआ. सो आउट ऑफ 60 22 यूनिट्स फिल हो गया है अप टू 11 a.m. पवन ये पॉइंट क्लियर है? ओके. सो अब जैसे ही 11 a.m. हो गया आपका सिचुएशन आ गया A plus B minus C. So 4 plus 5 9 9 minus 15 which means minus 6. So from this moment आपका टैंक एम्प्टी हो सकता है इस रेट से. और कितना एम्प्टी करना है? 22. So 22 by 6 11 by 3 और 3 whole 2 by 3 hours और in detail it is 3 hours 40 minutes after 11 a.m. So your timing is 2:40. Now clear? हाँ तो फिर वो तो मिस्टेक हो गया. Manjeet got it? Again question belongs to alternate order. So ये तो आप अच्छे से डील कर लेते हैं. Do it fast. इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे करेक्ट होना चाहिए. इजी क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज को ठीक से रीड करिएगा. ए एंड ए इज ओपन फॉर ऑल द टाइम. ऑल्टरनेट केवल बी एंड सी में हो रहा है. इट मीन्स फॉर फर्स्ट आवर ए और सी का कॉम्बिनेशन है एंड फॉर द नेक्स्ट आवर बी एंड सी का कॉम्बिनेशन है और यही ऑर्डर चलेगा. Okay. Rest students, your answers. मंजीत बेटा कुछ तो मिस्टेक किया है. चेक इट अगेन. I think correct answer is 7 hours. So Manjeet, discussion required for this question. Vamsika, देखिए आपको ए बी सी का डेटा गिवन है 12 15 एंड 20 और सबके लिए फिल दिया है, एम्प्टी कोई नहीं कर रहा है. सो योर 60 फुल कैपेसिटी, 12 5s are 15 4s are 23s are. ऑल्टरनेट केवल बी और सी हो रहे हैं. ए का तो ऑल टाइम वर्किंग है. इट मीन्स फॉर फर्स्ट आवर आपका ए एंड सी का इन्वॉल्वमेंट है एंड फॉर द नेक्स्ट आवर B and C का involvement है. So within 1 hour A and C it means 5 plus 3 so 8 units fill हो रहा है and for next 4 plus 3 it means 7 units fill हो रहा है. Sorry A plus C गलत कर दिया अपन ने. B और C alternate थे ना. एक मिनट बेटा. B और C alternate हो रहा है ना, तो A तो always working है
इट मीन्स पहले ए और बी का कॉम्बिनेशन है, फिर ए और सी का कॉम्बिनेशन है. सो इनिशियल 1 आवर में ए एंड बी इट मीन्स 9 यूनिट फिल कर रहे हैं. देन विन 1 आवर 8 यूनिट फिल हो रहा है. इट मीन्स इस पोजीशन पर इन ईच 2 आवर्स 17 यूनिट फिल हो रहा है. सो मेरे को पहले तो क्लोज टू 60 पहुंचना है. सो 60 में इट मीन्स ऑब्वियसली 51 मल्टीपल में आ रहा है. सो 51 फिल करने में ऑब्वियसली 6 आवर्स इन्वॉल्व हो गए और रिमेनिंग बचा 9. एंड टू फिल दिस 9 यूनिट टर्न आया ए प्लस बी का, जिसे 9 यूनिट फिल करने में 1 आवर मोर लगेगा. सो 1 more hours इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज 7 आवर. Manjeet, Ashwi, clear now? Okay. अगेन क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल लैंग्वेज डिकोड करना है. One minute is sufficient to solve this question. 30 seconds for reading and remaining 30 seconds for solution. Anyone got the answer? Should I discuss? Okay guys, so start करते हैं discussion. Pawan got 4.5. Okay. So system can be filled by two pipes respectively in 12 and 16 minutes. So two pipes A and B. Timing is for 12 and 16 minutes. So LCM is 48. This is your full capacity. 12 fours are 16 threes are walk per minute. Now question का language कहता है both pipes are open together for a certain timeout being clocked. Only 7/8 of quantity water flows through the former and only 5/6 through the later. तो ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली पाइप के अंदर जैसा कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कचरा टाइप का आ जाता है, सो क्या होता है उसका वाटर का फ्लो कम हो जाता है. सो वही हुआ कि 7/8 हो गया फॉर्मर का और 5/6 हो गया लेटर का. देन ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड. जैसे ही उसको निकाला गया तो उसका एक्चुअल फ्लो जो कि 4 and 3 है यही स्टार्ट हो गया. एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ये टैंक 3 मिनट्स में फिल हो गया. सो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव किया गया उस मोमेंट से 3 मिनट लगे इस टैंक को फिल होने में. तो उस मोमेंट से कितना फिल किया ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम दैट मोमेंट इनका फ्लो 4 and 3 के अकॉर्डिंग 7 यूनिट पर मिनट चल रहा था और 3 मिनट्स में फिल हुआ, विच मीन्स 21 यूनिट उस मोमेंट से फुल फिल हुआ है. सो इस 21 को इससे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इट मीन्स 27 यूनिट फिल करने में डेफिनेटली वो पोजीशन रही है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन इन्वॉल्व रहा है. और ऑब्स्ट्रक्शन इन्वॉल्व रहा है इट मीन्स 7/8
फॉर्मर का और 5/6 लेटर का फ्लो रहा. सो एक्चुअली कितना फ्लो रहा इज 3.5 एंड फॉर दिस इट इज 2.5. इट मीन्स उस पोर्शन पर मिनट 3.5 प्लस 2.5 मीन्स 6 यूनिट फिल हो रहा था पर मिनट, और 27 फिल किया. सो 27/6 which means 4.5 minute. Yes, correct answer is 4.5. After 4.5 minute, obstruction is removed. Pawan, absolutely right. Ashvi, Vamsika, clear now? Sir, can you please repeat that once again, sir? Which part? So from the clogging parts are 7/8 and 5/6, sir. बेटा इनिशियली क्लियर मैंने ये किया. एक मिनट. सपोज ये टैंक था. इस टैंक के रिस्पेक्ट में जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रहा तब तक ये पार्ट सपोज फिल हुआ. ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करने के बाद ये पार्ट फिल किया. तो ये एक्चुअली कितना पार्ट था ये कैलकुलेट करने के लिए अपने पास विद इन 1 मिनट फ्लो जा रहा था 7 यूनिट पर मिनट. 4 + 3 7. एंड फ्रॉम दिस मोमेंट 3 मिनट्स में टैंक फिल हो गया. इट मीन्स 21 यूनिट फिल हो गया. सो 21 इस मोमेंट में फिल हुआ. इट मीन्स रिमेनिंग ये 27 फिल हुआ था कब? जब ऑब्स्ट्रक्शन इन्वॉल्व था. यस और नो? Yes, sir. और ऑब्स्ट्रक्शन के केस में फर्स्ट का फ्लो था 7/8. कितना था? 7/8. और सेकेंड का 5/6. सो इट मीन्स फर्स्ट का एक्चुअल फ्लो था 3.5 और सेकेंड का 2.5, और इन दोनों का सम कितना हुआ? 6 यूनिट विद इन मिनट. और कितना फिल किया था? 27. तो टाइम कितना लगेगा? 27 डिवाइड बाय पर मिनट कैपेसिटी कितनी थी? 6, विच इज 2.5. आपसे यही तो कैलकुलेट करना था कि कितने टाइम बाद ये ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव किया गया. Okay, sir. So guys, anyone having any doubt from initial to end? Okay, now do your practice with some basic questions and also with moderate level of questions. Thank you, everyone. This is the end of this class.